झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को नतीजे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान, 23 नवंबर को नतीजे। झारखंड में कुल 2.6 करोड़ वोटर। चुनाव आयोग, महाराष्ट्र में 9 करोड़ 63 लाख वोटर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव 20 नवंबर को होंगे, वहीं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इस राज्य में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ ही 23 नवंबर को आएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को 145 सीटें चाहिए होंगी। वहीं झारखंड की बात करें तो विधानसभा की 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 42 सीटों की जरूरत होगी। इसके अलावा 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। 13 नवंबर को 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में 2019 की दलगत स्थिति, कुल सीटें 228, बहुमत 145, भाजपा 105, कांग्रेस 44, शिवसेना 56, निर्दलीय 13, राकंपा 54, अन्य 16। Now I come to the schedule for Maharashtra. This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday, so that issue of urban apathy is handled. And in case of urban apathy, we are really very concerned. We want to make appeal through you to all our esteemed voters in the urban areas to please come and vote. It's not a healthy trend which is reflected. If I give you a brief of what is happening across the elections in the urban apathy, we will share this slide with you. If you look at various states, you look at Gurgaon, you look at Faridabad recently. Last elections, you look at Jubilee Hills, Hyderabad. You look at Bangalore South. You look at Gujarat, Gandhigram, Kolaba, Mumbai City, Pune, Thane. All are much below the state averages of each state. We will be conducting a special meeting of the municipal commissioners and DOs within a week's time to appeal again to do whatever we can do to motivate the voters in the urban areas, but the trends are really not good. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, झारखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है, जिसमें से 1.29 करोड़ महिला और 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 11.84 लाख है। झारखंड में 29,562 पोलिंग स्टेशन होंगे। राजीव कुमार ने कहा, महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या 9.63 करोड़ है, जिनमें से 4.97 करोड़ पुरुष और 4.66 करोड़ महिला मतदाता हैं। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 20.93 लाख है। महाराष्ट्र में 1,01,86 मतदान केंद्र हैं। इस बार भी हम PWD और महिलाओं द्वारा संचालित बूथ बनाएंगे। झारखंड में 2019 की दलगत स्थिति, कुल सीटें 81, बहुमत 41, JMM 30, भाजपा 25, कांग्रेस 16, JVM 3, AJSUP 2, अन्य 5। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव, करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ।
phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, लोग पूछते हैं कि किसी देश में पेजर से ब्लास्ट कर देते हैं तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती। इस पर राजीव कुमार ने कहा, पेजर कनेक्टेड होता है भाई, ईवीएम नहीं। 6 महीने पहले ईवीएम की चेकिंग शुरू होती है, पोलिंग पर ले जाना, वोटिंग के बाद वापस लाना। हर एक स्टेज पे पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट या कैंडिडेट मौजूद होते हैं। जिस दिन कमीशनिंग होती है उस दिन बैटरी डाली जाती है। वोटिंग से 5 से 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है, इस दिन सिंबल डाले जाते हैं और बैटरी डाली जाती है। बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत डाले जाते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम में जाती है, यहाँ भी 3 लेवल की चेकिंग होती है। जिस दिन पोलिंग के लिए निकलेगी तब भी यही प्रोसेस होगी, वीडियोग्राफी होगी, नंबर भी शेयर होंगे। ये मशीन यहाँ बूथ पर जाएंगी, फिर चेकिंग होगी, वोट डालकर देखे जाएंगे। पूरे दिन वोटिंग हुई, फिर मशीन लॉक, फिर दस्तखत और हिसाब किताब होता है। 20 शिकायतें आई हैं, हम हर सवाल का फैक्चुअल जवाब देंगे, जल्दी देंगे, अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।